तो हम सारे लोग जानते हैं कि सारे जो मंदिरों की जो कथाएं हैं या सारे जो भगवानों की जो कथाएं हैं, अलग अलग लोग अलग अलग पद्धति से उसे लोगों तक ले जाते हैं, लिखते हैं। और उन सारी चीज़ों को ये लेखक अपने अपने कलम से बहुत उत्तम रीत्या लोगों तक पहुंचाते हैं। We've been well averse that every temple has a story of the god, story of the devotees, story of the cities around, stories of the beliefs, and those stories need to be presented and put across in a big way so that it is well written by the power of these authors and presenters, and then that reaches out to people in a big way. Today we have an eminent dais here. I would request each and every one of them to kindly introduce themselves by your own words in a crisp format. Give us an overview about what you've been thinking about this event. At the same time, the topic here is the art of storytelling. हर मंदिर की कहानी है, हर मंदिर का जो एक विषय है वो लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, और वो पहुंचाया जाने के लिए उसे अच्छी तरीके से लिख के प्रस्तुत करना इम्पोर्टेंट है। ये जागतिक स्तरों के ऑथर्स हैं, शंतनु गुप्ता जी हैं जिन्होंने द मंक हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर नाम का पुस्तक लिखा है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। वैशाली जी हैं जो सेलिब्रेटेड ऑथर हैं। श्रद्धा शर्मा जी हैं जो योर स्टोरी नाम का पब्लिकेशन और स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। अक्षत गुप्ता जी हैं यहाँ पे जो हिडन हिंदू नाम का बुक उन्होंने लिखा हुआ है। दीपक चौधरी जी हैं जिन्होंने बहुत सारे इवेंट्स, एक्टिविटीज़ और बहुत सारे कन्वेंशंस जागतिक स्वरूप में किए हुए हैं। सो क्विकली इफ़ आई कैन सेट इट राइट, इफ़ यू कैन स्टार्ट विथ यू एंड प्लीज़ गिव अस अ क्विक overview, and then we can have a session, and followed by that a Q&A session for the same. Okay, namaskar. My name is Shantanu Gupta. As Giriji said, I am Yogi Adityanath ji's biographer. Now, this is my third book in the Yogi trilogy, and thanks to Giriji, it's, if you open your bags, the kit that you got, it's available in every bag. Why the storytelling becomes important, and this book narrates it. So this is my third book. First was The Monk Who Became Chief Minister, published by Bloomsbury, became hit in like 6 months. I reached Jaipur Literature Festival, which is like the biggest literature festival. Second book came The Monk Who Transformed Uttar Pradesh. By third month, fourth month, I did a long 20 days US tour for that book, right? So this book became bestsellers, someone in 3 months and 6 months. When I converted the book for the kids, and that too in, if I can open it for you, in an Amar Chitkatha style, like graphic format, this book became Giriji bestseller in 6 days, right? So 6 months to 3 months to 6 days. Not because maybe what I've written, maybe the target audience and the way it's written. And I think that's my plea, request, advice. You're all very senior people, so I can't advise you much, maybe request. So convert all your stories. You have far more fascinating stories into the format which is consumed by the current youth. One more thing in my personal intro, I'm a homeschooling father. I have a 10-year-old son and a 5-year-old daughter, and they have never seen a school. So we're very connected to how the pedagogy, how the learning of our kids are going, right? And when I see him, what fascinates him, what he watches, what she watches throughout the day, that has a lot of stimulus. So if you present him something boring, and he say, okay, ठीक है, पिताजी ने कहा है तो कर लेंगे, but he will never imbibe it until it is available in his or her format that he or she consumes. So we have to convert our format. So let's say I also run something called a Ramayana school, right? हम लोग मुरारी बापू की कथा सुनते हैं. I get very fascinated. I worked for Astha TV for a couple of years, and I used to meet Murari Bapu. But my son may not be able to follow the Hindi of Murari Bapu, and he may not have been fascinated the way, the delivery style. Nothing against Murari Bapu. He's doing amazing work, right? But again, his delivery may not match what my 10-year-old son is looking for now. So what we have done in Ramayana School, we have created the modern learning principles of quizzing. We have crossword puzzle on different kandas. We have a Bal Kand crossword puzzle, right? We have games, crossword puzzle, jigsaw puzzle, coloring puzzle. And then when I narrate the story of Ramayana, every 10 minutes I take a break and pose them a critical thinking question, right? So I think my only limited expertise in converting or coursifying whatever you are doing in your temples in a format which young children and young boys and girls can consume. Thank you. Thank you very much.
I would rather put it across that Hindi English would be a better combination for us to communicate if that's perfectly all right with us, and bring it up. Thank you. Vaishali ji. Namaste, Jai Shri Krishna to everyone. I'm Vaishali Shah. I come from Kenya, which is East Africa. I'm here because we have a Shiv temple called Kamleshwar Mahadev Temple. I have a very interesting story to narrate, but I think this is only introduction right now. I'll share that as we go along. Apart from that, I run a website called hinduscriptures.com for last 17, 18 years. And we have more than 45,000 pages in the website. After that, I created this book series called Hindu Culture and Lifestyle for the kids who are 10 onwards to even to the adults from a point of view of an NRI, because it's written in a way that an NRI can understand. And there are many other projects which we do under my foundation, Sri Vedant Foundation. All these projects are under our own foundation, self-funded, and it's for, of course, for public consumption. But I'm very glad and happy to be here, and I'm sure we'll get to learn a lot of things. Those who are interested in translating this book, you're welcome. We'll discuss that in length. Thank you very much. Ji Shraddha ji. You can take this mic. हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, please. तो सबसे पहले मैं गिरीश जी आपको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग वाराणसी में आए हैं और यहाँ बैठे हैं और टेम्पल कनेक्ट जैसा इनिशिएटिव हो रहा है। हम लोग देश में बहुत तरह के इनिशिएटिव देखे, बट समथिंग टेम्पल हम सब जाते हैं और जगह जगह जाते हैं, बट आज पहली बार मुझे लगा दैट वी आर सेलिब्रेटिंग व्हाट इज़ आवर हेरिटेज, और उसके लिए आपको बधाई। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, एक जो मेरी कहानी है वो सबकी है यहाँ पे। मैं बिहार से आती हूँ और बिहार में जब मैं पैदा हुई तो मेरे घर में 4 बहन थे हम, और जैसे ही पैदा हुए सब रोना शुरू कर दिए कि एक और बेटी हो गई, अब क्या होगा। और मेरी कहानी वहाँ से शुरू हुई कि अब होगा क्या। और मेरे फादर को कहा जाता था, शर्मा जी देखिए 4 बेटी है, कितना दहेज देना होगा। और मैंने कहा मेरी कहानी ये नहीं होगी, मेरी कहानी अलग होगी। और मैंने अपनी कहानी लिखी। आज मैं यो स्टोरी चलाती हूँ, जहाँ हमने 1.5 लाख स्टोरी लिखी है, 2 करोड़ लोगों को रीच करते हैं। और मुझे लगा कि अगर हौसला हो और स्टोरी हो और अपने आप पे विश्वास हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ में बैठी 1 घंटे और उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी दी और मैंने उनकी स्टोरी लिखी। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर उम्मीद है, हौसला है, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मिडिल क्लास इंडिया से आते हैं ना और थोड़े कम इंडिया से आते हैं तो हमको अपनी स्टोरी सुनाने, वी आर नॉट इन द हैबिट कि हम अपनी स्टोरी सुनाएं। हम अपने बारे में बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें शुरू में सिखा दिया था कि दूसरों को सेलिब्रेट करो। मगर मैं कहना चाहूँगी 2 चीज़ें ज़िंदगी में मैंने देखा है कि अगर मन में ये विश्वास है ना कि हम किसी से कम नहीं, तो बाकी सब बकवास है। तो अपने पे विश्वास रखना और अपनी स्टोरी पे, क्योंकि अमेरिका का स्टोरी देखना, शुरू में देखो अमेरिका में क्या होता है, देखो जापान में क्या होता है, देखो यहाँ क्या होता है, देखो उसके साथ क्या होता है, मगर हम कभी ये नहीं कहते हैं देखो हमारे साथ क्या होता है, हमारी स्टोरी क्या है। मैं चाहूँगी कि इस माध्यम से, टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से, अगर आप लोग अपनी स्टोरी समझना, लिखना और उसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो वी आर पार्टनरिंग विद टेम्पल कनेक्ट, और हम सब की स्टोरी प्रमोट करना चाहेंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। Thank you very much. अक्षत गुप्ता जी, हमें आप ओवरव्यू दीजिए। सभी को प्रणाम। हम लोगों ने वो लाइन सुनी है ना, सबने बचपन में, हमारे तो स्कूल में चलती थी कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। तो आप सब हम लोगों के साथ हैं अभी यहाँ से भी। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती कर रहा हूँ। मैं अभी जितनी बार भी आप लोगों के लिए, मैं एक अपनी लिखी हुई कविता पढ़ के इस बात की शुरुआत अपनी तरफ से करना चाह रहा हूँ। मैं जब भी प्रणाम बोलूँगा ना, तो आप सब एक स्वर में बोलिएगा, मैं हिंदू हूँ। हम कर सकते हैं ये? तो कविता कुछ ऐसी है। हम वाराणसी की धरती पे बैठे हैं और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे ये चल रहा है, हम सबको पता है। तो इसी शब्द से शुरुआत है कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ,
विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अक्षत गुप्ता है। जी फिर से करेंगे सर, और लोगों का भी मौका आ जाए। ज़रूर ज़रूर मैं करूँगा। मेरा नाम अक्षत गुप्ता है, मैं छत्तीसगढ़ से आप लोगों के बीच में आया हूँ। फ़िलहाल मुंबई में रहता हूँ। एक किताब लिखी है मैंने जिसका नाम द हिडन हिंदू है। महेंद्र सिंह धोनी साहब जो हमारे क्रिकेट कप्तान रहे हैं, धन्यवाद, उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने इसके राइट्स खरीदे हैं। 3 पार्ट में ये फिल्म बन रही है। मेरे पास उसके अलावा 7 फिल्में और हैं एज अ स्क्रीन राइटर, स्क्रिप्ट राइटर। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन यूजुअली देता हूँ कि हाय, माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, बाकी अभी और बात होगी। ऑल टू यू सर। मेरा नाम दीपक चौधरी है और हरियाणा से हूँ। मैं नारनौल हरियाणा से हूँ। बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। गिरीश कई साल पहले गिरीश ने इस चीज़ की शुरुआत की थी और आज ये इतना बड़ा बन जाएगा हमने सोचा नहीं था। आई थिंक गिरीश बहुत बढ़िया, सबको साथ में लाने के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट। मैं कॉन्सर्ट्स कराता हूँ, फेस्टिवल्स कराता हूँ, एंटरटेनमेंट कराता हूँ। मैं इंडिया में मतलब कई जगह पे कन्वेंशंस कराता हूँ। बट मतलब थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं हम टेंपल से। और आज आप देख रहे हैं कि कितना अगर हम एक्चुअली इवेंट्स को इतना फीड मिलता है टेंपल से। तो अगर आप सब टेंपल्स को एक राय देता हूँ, मतलब एक पॉइंट, हम इवेंट्स एज अ ब्रांड बनाते हैं हम। तो अगर एक हर हफ्ते का, एक हर महीने का और एक हर साल का एक ब्रांड बना सके आप अपने टेंपल में, ओके, तो ये सोचिएगा। और ये जो ब्रांड है ये कई साल तक चलेगा। वो ब्रांड किसी भी बहुत सारी शेप्स में हो सकता है। आप फेस्टिवल बना सकते हैं, आप कन्वेंशन बना सकते हैं, आप म्यूज़िक इवेंट कर सकते हैं, आप कल्चर इवेंट कर सकते हैं, आप आर्ट पे कुछ कर सकते हैं, आप एक्सपो बना सकते हैं। तो ये अगर ये सोच के साथ रहें, और मैं यहीं पे हूँ, इसमें साथ दे सकता हूँ कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। मैं टेंपल कन्वेंशन के साथ हम लोग एक म्यूज़िक फेस्टिवल कर रहे हैं। गिरीश बात करेंगे उस बारे में और आप सब लोग साथ में आ सकते हैं उस पर। दैट्स इट। धन्यवाद। तो सबसे पहले धन्यवाद फॉर अ ब्रिलियंट थिंग। एक वंस मोर हो जाए क्योंकि उसके बाद में ना Q&A में फिर वो ढल जाएगा। तो एक बार एक वंस मोर कर लेते हैं। भाई साहब का एक सिनारियो था, चलेगा? तालियों के और सभी जन साथ में मैं हिंदू हूं साथ में बोलेंगे। उसमें कोई आवाज में कोई कमतरता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? गिरीश जी, मैं ये फिर से कविता पाठ करूं। उसके पहले एक बात बतानी कि जब मैंने ये किताब लिखी थी द हिडन हिंदू, तो मुझे इतने लोगों ने समझाया था कि कुछ भी नाम रख लो पर हिंदू शब्द मत डालो। ये मतलब जिद में ये काम हुआ है क्योंकि कहानी एक हिंदू की है, एक चिरंजीवी की है जो ये कह रहा है कि मैं चारों युग जी चुका हूँ। एक अघोरी पकड़ में आया 2020 में जो ये कह रहा है कि मैं चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ। मैं चारों युग बिना मरे जा चुका हूँ। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला हूँ और कृष्ण से भी। मगर वो 7 चिरंजीवी जिनके बारे में आप और हम जानते हैं उनमें से मैं कोई नहीं हूँ। मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं है और मैं अब तक छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। अब बाहर आया हूँ
ढूंढते हुए उन 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में हनुमान जी, कृपाचार्य, परशुराम, अश्वत्थामा, वेदव्यास, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। तो ये एक परेशानी है जो अभी आपने कहा ना कि खुल के बोलिए हिंदू, बाकी सब लोगों का, यहाँ तो सभी हम दिख रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं तो मुझे लगता है सिर्फ हम ही लोग हैं जिनको देख के बताया नहीं जा सकता कि हम कौन हैं। बाकी को देख के समझ में आता है, दे वेयर इट ऑन देयर स्लीव्स विद प्राइड, वी डोंट। तो मैं फिर से ये कविता पढ़ रहा हूँ आप सबके लिए। रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर, फकीर, अली, वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम। मैं हिंदू हूँ। बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। सो ये सेशन को आगे लेते हुए एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये था कि हम लोग सारे जन जो हैं ये हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग उस तरीके से है, या हमें बोला जाता है कि सादगी में सब कुछ छुपा है। बट सबसे पहले मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग है, या जो एलिमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, आपको किस तरीके से लगता है कि इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे स्टोरीज हैं, इतने सारे लोग हैं जो अपने मंदिर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, उस हर मंदिर की एक कहानी है, उस हर मंदिर के मैनेजमेंट की एक कहानी है। कल यहाँ पे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से जो थे उन्होंने कहा कि धर्मा रेड्डी जी ने कि बहुत सारा काम हो रहा है, उसी प्रकार से हर मंदिर यहाँ पे काम कर रहा है। आपका क्या इनपुट है या क्या सजेशन है कि आप इन लोगों की कहानी लोगों तक किस तरीके से ले जा सकते हो? आप सभी लोग इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि हाउ डू यू थिंक, श्रद्धा जी, व्हाट इज योर टेक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाउ पीपल्स स्टोरी ऑन अ ग्रास रूट लेवल कैन बी पुट अक्रॉस टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड? Switched off, I think. या ओके, सॉरी गिरीश जी, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम देखें तो क्या याद रखते हैं, अगर इस इवेंट से अगर हम जाएंगे 2 दिन, कल जाएंगे इवेंट के बाद, तो हम क्या याद रखेंगे? जो हम याद रखेंगे, सोचिएगा इसके बारे में, जो हम याद रखेंगे वो स्टोरीज़ जो हम यहाँ पे सुने थे। कल मैं जब यहाँ आई थी तो सुबह में जब श्री मोहन भागवत जी जब कह रहे थे, जब उनका स्पीच था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, क्योंकि मेरा नाम भी था तो मुझे याद रहा कि क्यों मंदिर इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि उसमें श्रद्धा और निष्ठा बना रहेगा। एंड टू मी दोज वर्ड्स वी रिमेंबर। और अगर देखिए हम लोग कितना, सब कोई टीवी यहाँ पे देखता है, हु ऑल वॉचेस, सब टीवी देखते हैं, हाँ, सोशल TV मीडिया देखते पे हैं ना? है सब कोई, व्हाट्सएप पे भी है, बट कहानी कौन सी याद रहती है? सबसे ज़्यादा कहानी, ये पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा कहानी कौन सी चली? रामायण। और ऐसा क्यों है? बचपन में हम लोग देखे थे रामायण, अभी भी रामायण सबसे ज़्यादा वॉच्ड है, महाभारत सबसे ज़्यादा वॉच्ड है, और पंचतंत्र जो कहानी है वो दुनिया की सबसे बड़ी कहानी आज भी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ज़माना बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बट हमारी कहानियाँ स्टिल पीपल रिलेट टू इट। सो इफ़ यू एंड द टेम्पल, अगर टेम्पल को रहना है अगले 100 साल, अगले 200 साल, तो लोग डेटा, लॉजिक और नंबर नहीं याद रखते हैं, लोग याद रखते हैं कि कहानी क्या है, इस टेम्पल की कहानी क्या है। और मैं कहूँगी कि अगर हम हर टेम्पल के पीछे जो कहानी है उसको याद रखें। कल उन्होंने जब कहा कि आई फॉरगेट द नेम, वो कहे ना कि उस टेम्पल के जो
ओनर है, ओनर नहीं, जो वो गांव-गांव जाते हैं और सबकी मदद करते हैं। देर इज अ नेटिव कि वो 4 महीने केवल अलग अलग गांव जाते हैं, हाँ। अलग अलग गांव जाके हर व्यक्ति से मिलते हैं। यस। हर व्यक्ति से मिलने से लोगों से संपर्क रहता है और उस संपर्क को लेके लोग आने का फुटफॉल बढ़ा तो देते वो हैं। मुझे स्टोरी याद रहा कि वो जाते हैं तो लोग आते हैं, और दैट वाज अ स्टोरी। मुझे लगा वो बिहेवियर चेंज है कि रोज जहाँ जाके सबसे मिलना। इनफैक्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट भाग इस कार्यक्रम या इस इनिशिएटिव का ये भी है कि उनके माध्यम से, परम पूज्य जी के माध्यम से, एक एस्पेक्ट ये था कि हर एक व्यक्ति, हम हर एक जन मंदिरों में लोग आने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, मंदिरों में लोग आएं, पर हम क्या मंदिरों के लोगों तक जा रहे हैं? इज देयर एन एमिनेंट एक्टिविटी हैपनिंग टू प्रमोट द रिलीजियस सेंटिमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स? जिस तरीके से आज मैं इस्कॉन की बात कर सकता हूँ कि आज घर घर जाके गीता बांट रहे हैं, तो क्या हमको लिमिटेशन है कि ये सारे मंदिर अपने अपने मंदिरों के रिलेटेड या अपने अपने भगवान या देवी देवताओं के रिलेटेड जो प्रमोशन है वो करने से हमें क्यों आज कुछ अपने को रोक रहा है वो ये विषयों को? तो ये सिनारियो है। शंतनु जी, आपको क्या लगता है इसके बारे में? श्रद्धा जी ने अभी कहा कि रामायण बहुत देखी गई। मैं रामायण पढ़ाता हूँ बहुत जगह। आज सुबह ही मैंने हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में सुबह 6:30 बजे सेशन लिया। अगर रामायण देखें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में वो इतिहासा की कैटेगरी में आता है। भारत में 2 इतिहास हैं केवल, वाल्मीकि रामायण, और कोई रामायण इतिहास में नहीं आती है। रामचरितमानस इतिहास में नहीं आती है। वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास महाभारत। जब आप इतिहास की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें ही श्रद्धा जी वो छुपा है। उसमें 3 एलिमेंट है। पहला है पूर्व युक्तम, मतलब पहले हुआ है, मतलब हिस्ट्री में जो हुआ है वो लिखा है, मतलब रामायण हिस्ट्री है, कोई मिथ नहीं है। दूसरा जो है वो श्रद्धा जी आपने कहा एग्जैक्टली में कथा युक्तम, मतलब वो कथा की तरह कहा गया। ऐसे नहीं आपने बोरिंगली डॉक्यूमेंट कर दिया केवल। पूर्व युक्तम, कथा युक्तम, लेकिन पर्पज ये है क्या? पर्पज हिस्ट्री कीपिंग है क्या? पर्पज एंटरटेनमेंट है क्या? ये पार्शियल पर्पज है, बस परोसने के लिए। जो पर्पज है वो पहला है कि इससे यू विल गेट धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसा ग्रंथ जो आपको ये जीवन के रस सिखा सके। तो पहली बार रामायण देखेंगे तो आपको लगेगा क्या फैसिनेटिंग स्टोरी है। जो स्टोरी टेलिंग वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हर 15 मिनट में एक आहा मोमेंट आना चाहिए। रामायण में तो मतलब मोमेंट ही मोमेंट है। मतलब पहले दशरथ परेशान है, राम लक्ष्मण हो गए। फिर अच्छी एजुकेशन चल रही है, विश्वामित्र आ गए एकदम से, बच्चों को लेकर चले गए, ताड़का को मार रहे। फिर कुछ हो रहा है, शादी हो गई। शादी होते हुए सब बिल्कुल ठीक है, राम कल राजा बनने वाले हैं, एकदम से वनवास हो गया। वनवास में हर 15 मिनट में एक बड़ा राक्षस आ रहा है। वनवास 13 साल कंप्लीट हो गया, माता सीता का अपहरण हो गया। तो इतनी क्लाइमैक्स वाली स्टोरी तो किसी स्टोरी टेलर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तो कहेगा ये तो मूवी बल्कि आज जाके बनी उस पर, वो भी शायद ठीक नहीं बनी। और फिर लेकिन पर्पज ये नहीं है, पर्पज ये दोनों भी नहीं है। पर्पज केवल है कि लंबा रह पाए। आज डिफरेंट डेटिंग, कोई डेटिंग कहती है 5000 साल पुरानी है रामायण, कोई कहती है 7000, कोई कहते हैं, नीलेश ओक जी कहते हैं 14,000 बाद, 14 साल पुरानी स्टोरी है। कोई भी डेटिंग मान लें आप, हम हज़ारों साल बाद आज भी रामायण जब दिखाते हैं तो सबसे हाईएस्ट व्यूइंग एपिसोड बन जाता है, क्योंकि उसमें कथा युक्तम का एलिमेंट है। लेकिन पर्पज उसका क्या था? जिससे आप उसे देखते 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 धीरे से धर्म अर्थ काम मोक्ष सीख जाएं। तो आपकी सबकी स्टोरी में वो कथा युक्तम वाला एलिमेंट जब तक नहीं होगा, स्टोरी वाला एलिमेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो वो लंबी नहीं रह पाएगी। ये बस मेरा कहना था। तो लार्जली स्पीकिंग ये तो हम भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से, बट केनिया में जब आप वहाँ पे मंदिर देखते हैं और मंदिरों के रिलेटेड जो जब विषय हैं, तो हमें बताइए उस तरफ धर्म किस तरीके से काम कर रहा है और मंदिर किस तरीके से काम कर रही है, और इसको आप आपके बुक्स के माध्यम से किस तरीके से लोगों तक पहुँचा रही है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि केनिया जैसी छोटी कंट्री में 60 से ज़्यादा मंदिर हैं, और हर एक भगवान के मंदिर है और हर एक कम्युनिटी के मंदिर हैं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य भी होगा कि जिस तरह की मैनेजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है वो तो हम वहाँ पे पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। जो क्लीनलीनेस की बात है, जो जिस तरह से फेस्टिवल होने चाहिए या फिर जिस तरह से डेकोरेशन होना चाहिए, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतनी डिटेलिंग में होती है। उनके कोई भी एक ऐसा भाव जो है हमारे प्रेजेंटेशन में होता है वो मिस नहीं होता है, चाहे वो नृत्य हो या फिर उनका स्टेज का डेकोरेशन हो या फिर भगवान के श्रृंगार ऐसे हो, तो कोई रस ऐसा नहीं है जो वहाँ पे फॉलो नहीं होता। और मुझे संभव यहाँ से वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि हमको ऐसा लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड
बहुत मटेरियलिस्टिक है, लेकिन ऐसा है कि जब वो एक टॉप पे आ जाता है तब उसका जिसको अनुभूति होती है उसको समझ में आता है कि नहीं, ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी कुछ और है। और जितने वो इंडियंस बन जाते हैं, और इसी की वजह से इस्कॉन और बहुत सारे इंस्टीट्यूट यूरोप में बहुत सारे गोरे लोगों को हमारी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। हमारे इंडियंस वहाँ जाके वेस्टर्न हो जाते हैं, बट वहाँ के लोग हमारे यहाँ पे, मेरी फैमिली में 10 गोरी बहुएं हैं, और आप नहीं मानेंगे, हमारे से ज़्यादा वो हमारा धर्म फॉलो करती है। वो योगा भी करती है, सुबह पाठ भी करती है, वो मंदिर भी जाती है, और वो सब कुछ फॉलो करती है जो आजकल की मॉडर्न सिटीज़ में, इंडिया में मॉडर्न सिटीज़ में फॉलो नहीं हो रहा है। मेरे आसपास में देख रही हूँ, बॉम्बे में भी वैसा, मुंबई में वैसा, दिल्ली भी वैसा, सब कुछ वैसा ही है, वो नहीं फॉलो होता। अब मेरे मंदिर की मैं बात करती हूँ, जिनको थोड़ा भी डाउट है कि शिव है कि नहीं, हमारा जो मंदिर हमने जो बनाया वो 100 साल से है। तो 100 साल पहले इंडियन कम्युनिटी ने उस जगह पे, जब भी रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और ब्रिटिशर्स लेके गए थे इंडियंस को, तो वहाँ पे उन्होंने प्रस्थापित किया होगा। फिर बाद में सालों से वहाँ इंडियन कम्युनिटी निकल गई, मंदिर रह गया, लोग वहाँ मन्नत मानते हैं, सब कुछ चल रहा है और पूजा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। 100वां साल महादेव को अपना रूप चेंज करने की मंशा हुई, और उन्होंने क्या मतलब क्या प्रपंच, आपको सुन के आश्चर्य होगा। बहुत लोगों मानते नहीं है कि नहीं, आजकल के टाइम में चमत्कार नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ, 100वां साल था, मेरे हस्बैंड को और उनके 2 फ्रेंड्स को मन में आया कि चलो ये मंदिर अब बहुत पुराना हो गया है, हम उनका थोड़ा मरम्मत करवा लेते हैं, कुछ जीर्णोद्धार कर लेंगे। तो उन्होंने हमारे जो केन्या के सबसे बड़े मोस्ट सीनियर जो पंडित जी हैं उनको बुलाया, उन्होंने आइडिया दिया और देखा, सब इंस्पेक्ट किया। उन्होंने बोला ये तो खंडित है। तो हमने बोला हमको तो पता नहीं, इतने साल से हो रहा है। तो बोलते हैं नहीं, हो सकता है कभी हो गया होगा, बट लेकिन अगर आपको करना है तो नया मंदिर करिए। तो एक तरफ 3 पार्टनर थे, उन्होंने डिसाइड किया, हमने सब कुछ अरेंज किया मेरे घर से, उनकी उत्थापन विधि सब कुछ की। उस रात को, जिस दिन होना था उसकी अगली रात को, सर्टेन कम्युनिटीज़ वाले हमारे घर पे 11 बजे आए, हमको उठाया, हमको बोला कि हम आपको होने नहीं देंगे। हमने बोला कि पंडित जी बोल रहे हैं, अगर हम उनको मानते हैं और ये कहते हैं खंडित है तो खंडित है, तो क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने नहीं बोला, हमारी आस्था उसी शिवलिंग से हम नहीं होने देंगे। और पूरी रात हमारी स्ट्रेस में गई। दूसरे दिन घर से निकले और घर पे से कार में थे, थोड़े दूर है मंदिर, 2 पार्टनर्स बैकआउट हो गए। उसने बोला हम नहीं करेंगे, लोगों की आस्था है। अब मुझे और मेरे हस्बैंड को डिसाइड करना था, पंडित जी कार में। मैंने बोला नहीं, कुछ भी हो जाए, अब हमने निकले हैं, हम पूरा करेंगे। और हम वहाँ गए, फिर वहाँ पे थोड़े लोग आए, उन्होंने बोला नहीं ये तो पुराना है। पंडित जी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे, मैं रो रही हूँ, पूरी पूजा, उत्थापन की पूजा, मेरे आँख से पानी निकल रहा है। मैंने सोचा ये नहीं होगा, लोगों ने बोला नहीं होना चाहिए, फिर हो गया। हमको थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली बॉयकॉट किया कम्युनिटी वाले ने कि नहीं आपने कर दिया। विदिन 6 to 8 months हमने मंदिर बनाया। मैंने पूरे कंट्री में से 5000 लोगों को, इंडिया के बाहर 5000 लोग मिलते नहीं है, 5000 लोगों को सिंगल हैंडेडली उस मंदिर का जो इनॉग्रेशन होता है, पूरी विधि जो होती है वो मैंने की। और बाकी सारी कंट्री, सब लोग, पूरी इंडियन कम्युनिटी आ गई। कोई कम्युनिटी का हेड होगा जो नहीं आया होगा, ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि जब महादेव को चाहिए, हम तो भाई बनिया है, बिजनेस कम्युनिटी है, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। हम मंदिरों में डोनेट करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, वो मैनेजमेंट रन करती है, वो हमारा बिजनेस नहीं है। लेकिन जब ये हुआ तब आई थिंक मेरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि ये नहीं हो सकता, जब तक उनकी कृपा नहीं है तब तक नहीं हो सकता। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तो, थैंक यू फॉर नरेटिंग दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, बिकॉज चमत्कार सब जगह होते हैं और महादेव सब जगह उनकी कृपा दृष्टि करते रहते हैं। बट मैं और एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपको कि दीपक जी, जब आप बात करते हो ये फेस्टिवल्स की, इवेंट्स की, एक्टिविटीज़ की, क्या ये हम लोग इवेंट मैनेजमेंट मीडिया में इंस्टीट्यूट चलाते थे और उस पर काम करते थे, तो हम लोगों को पूछते थे, स्टूडेंट्स को पूछते थे कि ज़िंदगी में ना आपने पहला इवेंट कब अटेंड किया, तो लोग बोलते थे कि अभी हमने कॉन्सर्ट अटेंड किया, हमें अभी एक कुछ किया। सबसे पहले घर में जो सत्यनारायण महापूजा होती है वो तो इवेंट ही है। हमारे घर पे जो गणेश जी बैठते हैं वो भी एक इवेंट ही है। हम बम्बई में ये जो दही हंडी का उत्सव करते हैं वो भी इवेंट है। महोत्सव हो रहे, ये इवेंट्स हैं। तो ये इवेंट, ये तो नए वर्जन का फॉर्मेट है, ये तो बहुत पीढ़ियों से चलते आ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि किस प्रकार से ये जो सारे लोग हैं, ये आपसे या आपके माध्यम से
उनके जो होने वाले फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस हैं उसको अलग लेवल से लोगों तक पहुंचा सकें, मंदिर का फुटफॉल बढ़े और उसके साथ में अवेयरनेस मल्टीप्लाई हो, क्योंकि अभी वाला जो जनरेशन है उसको इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। क्या कहना है आपका? नहीं तो एक बार स्टार्टिंग करूँगा ये स्टोरी टेलिंग वाले पॉइंट से, तो एंड देन आता हूँ इस पे। तो एक मतलब कहानी होनी ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये इस्टेब्लिश हो गया जो सबने बताया। अब आदमी मंदिर क्यों जाता है ये हम सब जानते हैं कि श्रद्धा है और उसकी बहुत गहरी श्रद्धा है, इसलिए जाता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है, हल्का सा। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आदमी मंदिर जाता है या कहीं या मंदिर की ही पे रहते हैं। या तो वो सोचता है कि मेरे को थोड़ा ज्ञान मिलेगा, थोड़ी नॉलेज मिलेगी, या ये देखता है कि मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा। बट सबसे बड़ा जो आज की डेट में हो गया ना, वो है फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम कहते हैं मेक मी विजिबल। अब ये अगर हम इस पॉइंट पे रहें ना कि हमें आज की डेट में अगर हम हर मंदिर में ये सोचें, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ों का आंसर इसी में ही है। ओके और वो बच्चा, एक वो यूथ, वो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट के लिए बहुत ज़्यादा जाता है। ओके तो अब मैं फ्रॉम अ फेस्टिवल पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ, मतलब ये एक पॉइंट पे रह के कि कहीं ना कहीं जो मैं शुरुआत बता रहा था आपको कि एक दिन बनाइए, एक मतलब हफ्ते में एक दिन बनाइए, महीने में एक दिन बनाइए, और हर ग्राउंड लेवल पे, अपने रीजनल लेवल पे इन्वॉल्व होइए, फिर अपने स्टेट लेवल पे इन्वॉल्व होइए और फिर कंट्री लेवल पे इन्वॉल्व होइए। वो एंटरटेनमेंट में भी हो सकता है, वो आर्ट और कल्चर में भी हो सकता है। अब इन सबको फिर आप मंदिरों का सोचे, एक मंदिर मत सोचे, फिर ये सोचे उस सिटी के मंदिर, फिर ये सोचे उस स्टेट के मंदिर, और फिर उसको सोचे कि इस कंट्री के मंदिर। ये सारी चीज़ें अगर हम जोड़ते चले जाएंगे ना, तो अपना जो इवेंट का एंगल है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट इकोसिस्टम बन जाता है। ओके तो दिस इज़ व्हाट द थॉट इज़। तो लार्जली स्पीकिंग, अक्षय जी आप मेरे को एक बात बताइए कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नरेशन, स्टोरी टेलिंग, पीपल अंडरस्टैंडिंग इट, you've been a very celebrated personality yourself on all the possible social medias. Communication happens everywhere. ठीक है, हर एक जन आपको आके वैयक्तिक रीत्या बात करता होगा, बट एज अ मास पीपल डोंट वांट टू बी प्रेजेंटेड और डोंट वांट टू रिप्रेजेंट। उनको एक कोई तो भी खौफ है या तो एक भय है कि नहीं मैं अपने बारे में अच्छी बात क्यों करूं, या किस तरीके से हम हमारे, एवरीवन इज हम्बल टू अ डिफरेंट लेवल। इतने हम्बल हो जाते हैं कि आगे चल के अपनी स्टोरी नरेट भी नहीं करते। तो वो कैसे, किस तरीके से ये सिचुएशन हैंडल करें? कि हम लोगों के सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना, वो ये है कि सबका ख्याल रखो, किसी को आहत मत करो। समय बदल गया, हमारी अच्छाई को हमारी नादानी समझना शुरू कर चुके हैं बहुत साल पहले से, पर अब वो बढ़ता जा रहा है। तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि खुल के रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, वो इसलिए कि अगर हम कहेंगे कि हम ये हैं, तो हम पहले अपने मन में ये सोच लेते हैं कि सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा कि क्यों बोल रहे हो भाई। ऐसा हमको इसलिए लगता है क्योंकि ऐसा सच में होता है। तो जब हम देखते हैं कि कोई खुल के बोल रहा है और उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कोशिश ये होती है कि मत बोलो यार, क्या मतलब है। मतलब है, बोलना पड़ेगा। मतलब भगवान शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, क्रिएटर हैं ब्रह्मा, हम लोगों को बुद्धिजीवी बना के मनुष्य शरीर में भेजे हैं। हम एक लौती ऐसी कौम है जो बोल सकते हैं, तो बोलिए। पूरे दिन हम बोलते हैं, लेकिन जब जो चीज़ सही में बोलनी चाहिए वहाँ पे। और क्या हुआ ना सर, पहले जो युग था वो मंत्र का युग था, उसके बाद जो युग आया वो तंत्र का युग आया, और अब जो युग है वो यंत्र का युग है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यंत्र का समय है, यंत्र का युग है। उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल आप करें या ना करें, बाकी लोग कर रहे हैं। तो आपकी तादाद इतनी होने के बावजूद आपकी आवाज़ इतनी नीचे इसलिए है क्योंकि हम लोग खुद से ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम गलती से किसी को आहत ना कर दें। अभी रिसेंटली मैंने बताया, मैं छत्तीसगढ़ की धरती से आता हूँ। मेरी दादी एक कहानी सुनाया करती थी, वो मैंने अभी सोशल मीडिया एक इंटरव्यू में मैंने बता दी। कहानी ये थी, जो कि सत्य घटना है। कहानी ये थी कि एक किसान के सपने में हनुमान आए और उन्होंने बोला सपने में कि अरे मैं पेड़ के अंदर फंसा हुआ हूँ, निकाल मेरे को। सुबह उठा, उसे मैं ही पागल हूँ, कुछ भी सपना है। गया, अपना किसानी विसानी किया, आया, चना रोटी गुड़ खाया, सो गया। अगले दिन फिर सपना सेम। 2-3-4 दिन तक जब लगातार यही सपना आया,
कि मैं पेड़ में फंसा हुआ हूँ, इस पेड़ में उसको पूरा रास्ता बताया गया, जंगल में यहाँ जाके इस पेड़ को यहाँ से काटना, अंदर में मैं फंस गया हूँ। वो किसान कुल्हाड़ी खरीदा, निकल गया, गांव वाले पूछे तुम तो किसान हो, कुल्हाड़ी क्यों खरीद रहे हो? बोले मेरे को ऐसा ऐसा सपना आ रहा है। कोई नहीं माना उसकी बात। वो जब वहाँ गया, 4-6 लोग उसके साथ गए, उसका मजाक उड़ाने की, चल देखते हैं पेड़ काटेगा, कुछ नहीं निकलेगा। साहब ये सच है कि उस पेड़ के अंदर से हनुमान की मूर्ति निकली। अब वो जो मूर्ति निकली उसके आसपास, ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि हर मंदिर के आसपास की कहानियाँ होनी चाहिए, तब हमारी श्रद्धा, आप वाली नहीं, तब श्रद्धा बढ़ती है कहानियों पे, और कहानियों के साथ उस मंदिर, उस स्थान की श्रद्धा और मान्यता बढ़ती है। तो आप वैष्णो देवी से लेके जितने भी बड़े मंदिर, वाराणसी में इतने मंदिर, सबकी बैक स्टोरीज है ना, इसीलिए तो उतनी मान्यता है कि पूरे देश से लोग आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे तो छोटे मंदिरों को कौन संभालेगा? उनको भी तो संभालना पड़ेगा। तो वो जो मूर्ति है वो हर साल कुछ साल में 1 इंच बढ़ती है। उसके आसपास फिर वो पेड़ काट के उसमें से हनुमान जी की मूर्ति निकाल के उसके पास मंदिर बनाया गया। अब वो मूर्ति इतनी बड़ी हो गई है, वो छत टच कर रही है, अब उसका नया छत डल रहा है। ये मैंने सोशल मीडिया पे कहानी के तौर पे सुना दिया, और अब मुझसे लगातार मैसेजेस में लोग इसके पूछते हैं। चलते, मैं बीच में बोलूंगा, इसके चलते जी। ये कहानी सुन के फुटफॉल टू द टेम्पल बढ़ा होगा। बढ़ गया फुटफॉल। वहाँ के जो पंडित जी हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आपने ये कहानी सुना दी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो एक एक मुंह से सुनाते रहते थे, आपने कहीं सुनाया। लोगों को ज़्यादा लोग अब मुझसे पूछ पूछ के पहुँच रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग। छत्तीसगढ़ के लोगों को उनकी कहानी नहीं पता थी, मैं मुंबई में रहते हुए बोल गया, मुझे नहीं मालूम था कि यंत्र इतना कमाल कर देगा। तो हमको, हमारी कहानी छोटी है या बड़ी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जब हम सुनाएंगे तो वो कहानी एक मुंह से दूसरे, और हम लोग तो हमेशा से मौखिक तौर पे ही रहे ना, हम तो कहानी सुनाने की पद्धति के लोग हैं शुरू से। 5000 साल से डॉक्यूमेंट हो रही है चीज़ें, पर 15000 साल से ये कहानियाँ हैं। तो चलिए सुनाते हैं एक दूसरे को एक दूसरे की कहानी। बढ़िया। लास्टली मुझे एक सवाल करना है, ये कैमरा क्रू को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑडियंस की तरफ कैमरा करिए। मुझे आपसे जानना है कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने मंदिरों की कहानी लोगों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए आज के समय में काम कर रहे हैं। आप हाथ खड़ा कर दीजिए। तो इतने सारे जन हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। कितने जन मल्टीपल लैंग्वेजेस में कर रहे हैं? अपने लैंग्वेज में सब कर रहा है, मराठी में कर रहा है, तेलुगु, तमिल, मलयालम में कर रहा है। कितने जन मल्टीपल लैंग्वेजेस में कर रहे हैं? कितने जन की इच्छा होगी कि ये सारे जो लोग हैं ये आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाए? और सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है कि ये माध्यम केवल उस माध्यम को जागरूक करने के लिए है कि आज अगर हम यहाँ सोचते हैं कि मेरी कहानी कहीं पहुँचे, आपके माध्यम से आपके पास वो कहानी है, वो आप लोगों तक, इनके या इनके जैसे बहुत कई लोग हैं जो अच्छी तरीके से जिनका स्किल है लिखने का और लोगों तक प्रेजेंट करने का, सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं आपको और एक विनती करता हूं कि यहाँ पे आज हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। हर मंदिर, हर रिप्रेजेंटेटिव को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप आके आपका कहानी नरेशन करें, आपका एक ओवरव्यू करें। आप यहाँ पे अगर शर्माने का काम करेंगे तो कोई काम इतने दूर आके आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आपकी मनसा है कि आप इतने दूर, आप जहाँ कहीं से भी आए हो, अगर आपकी मनसा है कि आपकी ये जो जर्नी जो आपने शुरू की है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा। हर एक जन को न्योता नहीं मिलेगा कि आओ आओ करो करो। आपका घर का कार्यक्रम है, आप होस्ट हो, आपको ये समझना है। आखिर में मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जब ये जो सारे विषय हम इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, क्रिस्प पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक एक मिनट में आप लोग आपका एक सम अप टू दिस सेशन, टू दिस इवेंट, और आप इन सब के साथ जुड़ के क्या कर सकते हो उसका एक अंदाजा कृपया दीजिए। शंतनु जी से शुरू होकर दीपक जी तक। देखिए, अक्षय जी ने यंत्र की बात करी और कल सुधांशु त्रिवेदी जी आए थे, उन्होंने आज सुबह 6 बजे एक छोटी सी बाइट डाली कल की, और उसमें 1 लाख लोग उसको देख चुके हैं। हम लोग तो यहाँ 600 लोग बैठे हैं, जो सुधांशु ने एक छोटी सी 1 मिनट की क्लिप डाली, तो ये यंत्र का कमाल है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, आपकी जो भी टेम्पल की स्टोरी है या टेम्पल का जो स्थल पुराण है, जो टेम्पल के बारे में है, वहाँ के डेटी की स्टोरी है, उसको ग्राफिक नॉवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एनिमेशन में कन्वर्ट करते हैं, सबसे ना उसको कोर्सिफाई कर सकते हैं, उस पर कोर्स बना सकते हैं एक,
और जो जितने भी आपके डिसाइपल आए वो केवल उस स्टोरी को ना सुने, वो भी उसमें पारंगत हो जाएं और वो आपके एक तरह से आगे चैंपियन बन जाए उस बात को बताने के लिए। वो मैं उसमें आपकी पर्सनल मदद कर सकता हूँ। नाम और मोबाइल नंबर अभी अगर यहाँ आप इनको शांतनु पकड़- गुप्ता डालेंगे और 10 मिनट लेंगे तो मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। और हम आपको सबको डेटा सबका भेजने वाले हैं, तो कोई प्रकार से कोई मिस आउट नहीं होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट कुछ नहीं होगा। मेरी वेबसाइट hinduscriptures.com वेबसाइट है। वहाँ पे हम जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी लिखे हुए हैं किस और या फिर जिन्होंने मंदिरों के बारे में या जो भी कंट्रीब्यूट किया है, वहाँ पे आप अपना आर्टिकल भेज सकते हैं। दूसरा मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मोस्टली NRIs फॉलोअर्स है, जहाँ पे मैंने लास्ट 4 साल में जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने लोगों ने, इंडियंस या नॉन इंडियंस ने जो भी लिखे, इनफैक्ट गिरीश जी ने भी एक इंटरव्यू वहाँ पे दिया है, तो वहाँ पे मुझे आप अपना जिनको भी अपने बारे में जो भी उन्हें मंदिरों के बारे में रिसर्च किया है वो आप मुझे बताएं। वहाँ पे मैं वो इंटरव्यू सीरीज़ आई थिंक अभी टेम्पल कनेक्ट के द्वारा वापस चालू करने जा रही हूँ। वो मैंने कोविड में स्पेशली किया था और मुझे लगता है उस टाइम पे ऐसे वीडियो सीरीज़ में 5000 6000 व्यूज़ वाज अ बिग डील, क्योंकि 1 घंटे का इंटरव्यू सीरीज़ और जहाँ पे लोग टेक्निकल बात कर रहे हैं उन पे यहाँ पे इतने फुटफॉल्स नहीं आते हैं, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। एंड दूसरा मेरी जो बुक्स है हिंदू कल्चर एंड लाइफस्टाइल, उसको मैं चाहती हूँ कि दूसरे लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो। अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें। इसके अलावा मेरी एक कोर्स मटेरियल है जिसमें हम बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके उनको हिंदुइज़्म के बारे में सिखाते हैं। जब वो मैंने मेरी कंट्री में तो बहुत सारे कोर्सेज हो चुके हैं, आपको अपनी कंट्री में करना है तो आप मुझे बताएं, आपके देश आपके टेम्पलों में जहाँ पे भी, मैं आपको पूरा टीचर्स मैनुअल दे दूंगी, सारा कंटेंट दे दूंगी। कंटेंट इनके माध्यम से अवेलेबल है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिल जाएगा और उसी प्रकार से हमको ये जो कोर्सेज है वो मल्टीप्लाई करने आ जाएंगे। श्रद्धा जी पर। ओके, और भी कुछ नहीं, बस गिरीश जी, मैं एक आप कहे कि सम अप करने के लिए, कल अगेन आई विल गो बैक टू मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। मन हम सब के अंदर एक मंदिर है, मन एक मंदिर है, घर एक मंदिर है और फिर एक मंदिर है टेम्पल, जो हम सब रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहूँगी कि आज हमारे सेशन से अगर एक चीज़ ले जाना चाहते हैं और याद रहे, तो जब आप मंदिर पे काम कर रहे हैं और हर चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अपनी कहानी पे भी काम कीजिए। अगर मैं पूछूं, अगर किसी को भी खड़ा करके कहूँ व्हाट इज़ योर स्टोरी, आपकी क्या कहानी है, तो देखिएगा बहुत संघर्ष होगा, मतलब इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरों की कहानी सुना देंगे बट अपना होगा ही नहीं, तो आप जब अपना नहीं होगा तो फिर टेम्पल का क्या होगा। तो फिर अगर जाएं तो इस वीक, इस सप्ताह, आज संडे है, शायद संडे शाम को ही अपनी कहानी लिखिए और अगर उसमें मदद चाहिए अपनी कहानी, तभी टेम्पल की कहानी, देन आई एम देयर। गिरीश जी के थ्रू प्लीज़ कनेक्ट। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हर वो पुजारी, हर वो विश्वस्त, हर वो मंदिर चलाने वाला, हर वो व्यक्ति जो बिहाइंड द सीन्स है, उसकी कहानी लोगों तक छपे। वो एक निस्वार्थ भावना से काम करे जा रहा है, उसका निस्वार्थ जो प्रेम है मंदिर के बारे में, वो योर स्टोरी के माध्यम से, टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से हम लोगों तक ले जाना चाह रहे हैं। तो उन लोगों को आगे लेके आओ। हम स्वयं के लिए तो सभी कुछ करते हैं, बट सबसे पहले स्वयं प्रस्तुत होना इंपॉर्टेंट है। आप प्रस्तुत होगे तो और भी लोग प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। हम लोगों के सेशन में अभी 2 मिनट और 8 सेकंड बचे हैं, उसमें हम दोनों को बोलना है, इसीलिए बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सर सोचिए कितना कमाल होना कि मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे एक डिस्ट्रिक्ट से शायद एक लोग ही होंगे। आपके सबके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कितने मंदिर होंगे? 500 के ऊपर है ना। उन सब मंदिरों में अगर कुछ कहानियाँ निकाल के, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, हम तो जो कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा, निस्वार्थ भाव। आपने बोला, मैंने द हिडन हिंदू 3 पार्ट लिखी है, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, एसएमीज़ में, उड़िया में, साउथ इंडियन 4 लैंग्वेजेस में, पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में, सब में छप रही। तो वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन सोचिए कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट के, एक प्रांत के 10 कहानियों को 10-10 पन्ने में डाला जाए तो 100 पन्ने की एक किताब बन जाती है, पतली सी। ठीक है। और आप सोचिए, अभी मैं कल विश्वनाथ के दर्शन करने गया था, तो वहाँ डलिया, जो सबसे छोटा प्रसाद का डलिया था, वो 350 रुपये का था। उस पर तो हम मोल भाव नहीं करते ना। तो इतनी सारी चीज़ों में अगर सिर्फ आप अपने डिस्ट्रिक्ट में उस 100 पन्ने की एक किताब डाल दें कि तुम अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे मंदिरों की कहानी 10-10 पन्ने में जान लो, 10 कहानी 100 पन्ने की किताब, ये हर कोई कर सकता है। आप सोचिए कितना आसान हो जाएगा। और वो डलिए में मैंडेटरी डाल दीजिए,
कि ये जाएगा, उसका आप पैसा लीजिए, क्योंकि प्रसाद का ले रहे हैं, फूल का ले रहे हैं और लोग दे रहे हैं, तो उसमें ये 20-25 रुपए में छपेगा, आप 50 रुपए उसका चार्ज कीजिए मैंडेटरी। एक घर में जाएगा, 4 होंगे कम से कम, एक तो पड़ेगा फेंकने के पहले, हो जाएगा ना काम। बाकी हम तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। अमेजिंग। एक मतलब कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब 25 लाख मंदिर होंगे गिरीश, ये नंबर आपने बताया था कि 25 लाख अगर मंदिर हैं अपने देश में, और अगर 20 आदमी भी रोज खिलाते हैं उस छोटे छोटे मंदिरों में भी, तो 5 करोड़ लोग हम मतलब एज मंदिर हम मतलब 5% इकोनॉमी हम रन कर रहे हैं सिर्फ। मतलब मैं ये मतलब एक ये नंबर देख रहा था आज, अब तो इसमें मतलब मैं इवेंट्स वाला आदमी हूँ, मैं यही बोलूँगा कि मैं इवेंट्स के थ्रू ये नंबर्स चाह रहा हूँ इन डिफरेंट वेज़, कि जहाँ पे भी आपको अपने मंदिर में अपने लार्ज सेटअप में, छोटे सेटअप में जहाँ हेल्प चाहिए इवेंट्स की, जो मैं बात कर रहा था, मैं हर तरीके से अपनी टीम के साथ, मेरे पास हर शहर में हर जगह पे टीम्स हैं, मैं किसी से कुछ लूँगा नहीं, जहाँ पे हेल्प चाहिए हर मंदिर में इवेंट्स कैसे बनाने हैं, कैसे उसको बड़ा बनाना है, मैं हर जगह हेल्प करने को तैयार हूँ। धन्यवाद। सो ऑन दैट नोट वी आर हियर ऑन टाइम। मैं क्विकली पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लोग हैं जिनको सवाल पूछने हैं तो प्लीज़ सवाल पूछिए, माइक वाली टीम कृपा करके क्विकली पूछिए सवाल किसके लिए है, और उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उनके, हाँ जी। नमस्कार, राम राम, प्रणाम, वणक्कम, नमस्कारम, जोहार। पूरे इंडिया से लोग आ गया है। अभी भाई साहब ने एक बहुत बड़ा इनोवेटिव किया है, हम हिंदू है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं, इतना लोग बैठे हैं सर। हम साउथ इंडिया से आ गया है, साउथ इंडिया में कितना लोग बैठा है, सबके साथ तिलक रखा है। अभी देखिए सर, सारा लोग बैठा है, किसी को साथ तिलक ज्यादा नहीं, तिलक रखना है, हम हिंदू तो तिलक रख लीजिए, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं सर। सो आज हम ये प्रण ले सकते हैं कि हर एक जन इस माध्यम से एक रेवोल्यूशन शुरू कर सकता है कि अगर आप हिंदू हो तो तिलक कैरी करो, वो आपका ब्रांडिंग है, वो कैरी करना मैंडेटरी है, ठीक है जी जी। तो आज के इस फोरम पे हम वो एक ऐलान करते हैं कि भाई साहब आपके माध्यम से कि मैं पहले निवेदन करूंगा, वो जो स्टेज में बैठा है सब लोग पहले तिलक रख लीजिए, उसके पीछे आपको रखना है। हमारा महान जी, उज्जैन के महान जी है, मेरा उन्हें तिलक छोटा रखने के तिलक लिए है। बोल दिया था, फिर उन्होंने तैयार करके तिलक रख दिया था। मैं उनका प्रणाम कर रहा हूँ, चरण पकड़ रहा हूँ। अभी हम भाई सब भाई हिंदू लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया के लोग हैं। अभी साउथ इंडिया लोग हाथ उठा दे ना, कहीं दुखेंगे ना, नम्मला कहीं दुखेंगे, एक ही आदमी के साथ तिलक नहीं तो बोल दीजिए इनके साथ तिलक नहीं। तिलक हमारा चिदम्बरम से आचार्य दीक्षितार जी हैं, दीक्षितार अभी जी हैं। उनको सबको शरण पकड़ रहा हूँ सर। अभी यहाँ से सर, सवाल गिरीश जी यही सवाल है। अभी हम शुरुआत कर लीजिए, आपका मुंह से, आपको इनोवेटिव से, टेम्पल कनेक्ट से। पहले आप यहाँ से एक निवेदन रख लीजिए, सारा हिंदू, अभी हिंदू बोलने की जरूरत ही नहीं, तिलक रखने की जरूरी है। पूरा हिंदू लोग हमेशा घर से बाहर आने के पहले तिलक रखना है। जय श्री राम, जय श्री, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीपीवी युगा मूर्ति सर। युगा मूर्ति जी, आपकी सलाह बिल्कुल सही है और ये मैं मानता हूँ कि ये होना चाहिए और मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि सबको करना चाहिए। तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं आपसे तिलक लगाऊं। राम राम से प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई भाई सब बहन कोई सवाल? हाँ जी, माइक दीजिए। हाँ जी, आगे वहाँ पे सवाल है। वहाँ पे है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विजय कुमार जैन, फ्रॉम हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट हिसार। बड़ा अच्छा लगा आपने हमें बुलाया, आपका बड़े हम आभारी है। मैं तो सिर्फ एक शंका है मेरे मन में, हम मंदिर बनाते हैं, हम मंदिर किस लिए जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं हम मंदिर में? हम अपने स्वार्थ में मंदिर में जाते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, हम जूते के फीते भी नहीं खोलते, मांगना शुरू कर देते हैं परमात्मा से कि हे भगवान हमको ये देना, हमको ये देना, हमको ये देना। भगवान को हम खाली छोड़ कर नहीं आते। या तो हम अपने डर की वजह से जाते हैं, अपने परिवार की खुशी के लिए जाते हैं, अपने बच्चों के प्रति मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन जाते जरूर है
जी। हमारे अंदर स्वार्थ है, तो सवाल क्या है? इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। अगर ये चीज़ हमारे अंदर ना हो तो जो मैं सोचता हूँ 90% आदमी मंदिर में नहीं जाएंगे। मेरा ये सर, तो इसी चीज को लेके मेरा एक कहना है। सबसे पहले तो ये है कि आप सवाल पे आइए, क्योंकि ये सेशन के बाद अलग सवाल है। सवाल पे आया हूँ मैं समझ नहीं, आपसे समझ गया। प्लीज, उनका मैं नाम थोड़ा भूल गया, जो हरियाणा से है, उन्होंने बोला था ये, मैं उसी टाइम मैंने हाथ खड़ा किया था कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, तो मैं उसी सवाल पर आया हूँ। मैं आपके सवाल का एक आउटकम देता हूँ। जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि टीका लगाना इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से जिस तरीके से हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन ओमनी प्रेजेंट है सब जगह पे, हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, जिस प्रकार से ब्रीथ करते हैं उसी प्रकार, या जिस तरीके से रोज 3 वक्त का खाना खाते हैं, उसी प्रकार मंदिर जाना वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लिविंग होना चाहिए, ना कि कोई स्वार्थ से जाना चाहिए। स्वार्थ, एक मिनट प्लीज। हम भगवान से मानता मांगते हैं, भगवान वेंकटेश्वर भगवान है कि हमारी इच्छा पूरी करना, हम अपने बाल का मुंडन करेंगे। बाबा हनुमान जी से और भगवान से कहते हैं, देवी देवता से, कि हमारी ये इच्छा पूरा करना, हम सावा मनी लगाएंगे। हमारी ये इच्छा पूरा करना, हम पैदल आपकी परिक्रमा करेंगे। हमारी ये इच्छा पूरा करना कि हरिद्वार से, प्लीज एक मिनट, हम हरिद्वार से कावड़ लाएंगे। सर 1 मिनट तो का ये सीन है, मेरे को बहुत सारे जन को हाँ, सवाल मैं बोल पूछना पड़ा। है। मेरा आखिरी, बस आखिरी प्लीज, आखिरी है सिर्फ ये। तो ये जो मैंने कहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा अपने विचार है। सर धन्यवाद थैंक यू, ये जो आपने बोला, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा जो ऐसा सही हो शायद, बट ऐसा बिल्कुल हर स्टोरी के लिए अलग स्टोरी भी है। बहुत लोग आज टेंपल, बहुत लोग जाते हैं क्योंकि सिर्फ श्रद्धा के लिए, क्योंकि मैं आपको अपना खुद का बोलती हूँ, मैं विपासना गई और विपासना में कहते हैं मन के अंदर मंदिर है, मगर मैं अब मंदिर जाती हूँ तो ऐसा नहीं कि भगवान मुझे कुछ देना, क्योंकि जो भी मांगा मिला नहीं, मगर अब मज़े से जाती हूँ। और बहुत लोग इस देश में जो मंदिर में डोनेशन देते हैं, ग्रांट देते हैं, वो स्वार्थ के लिए नहीं देते हैं, वो निस्वार्थ से देते हैं कि दूसरों का भला हो। और हमें उस नज़रिया से एक दूसरे को हम क्यों देखते हैं? जो स्वार्थ से जा रहा है उसके लिए भी मेरे दिल में प्यार है, उसके लिए भी प्यार होना चाहिए कि आज उसके पास कमी है, वो पूजा करते करते वो भी एक अच्छे लेवल पे जाएगा तो उसके अंदर भी निस्वार्थ आएगा। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, और मुझे मेरी मदर ने बचपन में वो कहा था, उसने, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भूखे पेट भजन नहीं होता। और हमारे देश में लोग भूखे थे, अब कम भूखे हैं, तो अब मंदिर जाएंगे तो मज़े में जाएंगे, लेकिन अगर वो जा रहे हैं अपने पेट भरने के लिए तो उसमें गलत क्या है? और मैं ये कहना चाहूँगी, सबके प्रति प्यार हो, स्वार्थी के प्रति भी प्यार हो और निस्वार्थ के प्रति भी प्यार हो, तभी तो दैट इज व्हाट टेंपल इज एंड दैट इज व्हाट इट शुड बी। जी, उसके पहले एक ही है सर, एक मिनट फक्त। हम लोग और 2 सवाल लेने वाले हैं। सवाल पे आइए, नहीं प्रवचन मत करिए। हाँ, बिकॉज यहाँ पे हम प्रवचन के लिए नहीं मिले हुए हैं। Good afternoon, team. I represent Vasvi Kanika Parmeshwari Temple located in Bengaluru, Malleshwaram. We have a unique concept every 2 years in order to attract the devotees and the younger generation. It's like connecting the Puranas to the younger generation. So it's like every 2 years we convert the temple into Nagalokam, we convert the temple into the palace, like that. But devotees are coming from the nook and corner of the state. But we want to take it to the global level, and we want the people to come across the way we are seeing in the Rudraksh Convention Center. We want the devotees to participate across the state. So I need an idea from you. Thank you. Yeah, so Nagasharan representing. सर साथ में जवाब देंगे, 2 मिनट। एडवोकेट राजेंद्र पांडे फ्रॉम अमरावती, महाराष्ट्र, श्री अंबादेवी संस्थान। धन्यवाद। तिलक के बारे में उन्होंने कहा, मैं ड्रेस कोड के बारे में कहना चाहता हूँ। मंगल वस्त्र पहनना चाहिए और अच्छी सुचिरभूत होकर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, और ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए जिसके तरफ देखते ही सुचिरभूतता दिखनी चाहिए। बस इतना ही मेरा कहना है। उसके भी बारे में कलम यदि चलाई जाए तो निश्चित रूप से उसका असर होगा। अच्छी बात है। हाँ जी, मैडम को दीजिए, वहाँ पे। लिसन, एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव इट टू, इनको देना, ये उड़पी से आए हैं। हाँ जी, 1-2 मिनट सर, रुक जाइए। नमस्ते, आई एम डॉक्टर उषा पै। हम साउथ से हैं, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, सो दैट्स द मिथ आई वांटेड टू ब्रेक हियर फर्स्ट।
Shraddha, I want to tell my story. It is not going to be long, but it is connected to temple. I started visiting temple and I realized that, yes, there are thousands and lakhs of temples in India, but many people know about Kashi Vishweshwar. But there are many Kashi Vishweshwar temples in small villages where the people cannot go to Kashi. They visit to this temple telling that Kashi Vishweshwar is here and we will worship here. So then I started writing the stories of these temples, and I write one temple per day. So till yesterday I have written 1,322 temples. बहुत सुंदर. Why? No, I want to meet you after this. Yes. Why I I am not a participant of any representative of any temple. I am academician and a devotee. Girish gave me an opportunity to come here. Why storytelling is important? I can tell you because when I wrote a very small story about a temple which is just next to me, which I was not aware of it became so viral. The temple priest was so happy that Ekadashi में एक बार में मंदिर खोलता था. अब लोग मुझे I gave the contact number of the temple priest also. Now the footfall has increased so much. I am not a social media influencer like you people, but I want you to focus and cover the stories of small temples, because Kashi Vishwanath, उज्जैन महाकाल सब जानते हैं, लेकिन उडुपी में, दक्षिण कन्नड़ में, कर्नाटक में और जो स्टेट है वहाँ छोटे ऐसे मंदिर है, उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन लिखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है. सो आई वांट टेम्पल कनेक्ट to give opportunity to these small temples because they are really places of very great vibrations. तो हम लोग यहाँ पे along with your story and Temple Connect, what we are doing is each and every temple here, in each and every person involved with the temple, it is our commitment that we will bring up every week unique temples and unique ritualistic stories about across the country and the globe. And thank you very much for this question. Thank you very thank much. you. So with that note, I would request, I would thank all you wonderful people that you all took up time and came over here. हाँ जी. सर क्या हो गया है कि जनरेशन का थोड़ा गैप है. हम तो नए बंदे हैं, ये सब बूढ़े बुजुर्ग हैं. मैं पहले उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन इन्होंने सब ने रीडिंग किया है. यू नो ऑल्सो कि आपने बुक लिख के दिया है, इन्होंने रीडिंग किया है. अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो डिजिटल है, तो अब ये क्वेश्चन आंसरिंग का रूल है, तो क्वेश्चन आंसरिंग होना चाहिए. हमें आपके ओर से ही आंसर चाहिए कि हम डिजिटलाइजेशन जो ट्रेंड है, मेरी बेटी है जो कि मोबाइल फोन ही देखती है, बुक नहीं पढ़ती. सही है. तो उसके रिगार्डिंग आप क्या सोल्यूशन दे सकते हो सभी, तो उसका सोल्यूशन दे दो प्लीज. इतना ही काफी है सर. मैं मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू मार्केट माई सेल्फ हियर, बट ट्रस्ट मी, टेम्पल कनेक्ट का मेन कोर जब शुरू किया था हमने, इज टू डॉक्यूमेंट, डिजिटलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट रिलेटेड टू द टेम्पल इकोसिस्टम टू द वर्ल्ड. मंदिरों को जोड़ने के लिए इंफॉर्मेशन कैप्चर करके राइट ऑडियंस तक पहुंचाने का काम टेम्पल कनेक्ट कर रहा है. महीने में 6 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं और 57 देशों में पहुंचे हुए हैं. इसको और 1000 गुना बढ़ाने का काम आप लोग करोगे, और उसी के माध्यम से हम यहाँ पे ये कार्यक्रम का हम लोग इसको पॉज कर रहे हैं क्योंकि अगले सेशंस डिले हो रहे हैं. तो उसके चलते सबको धन्यवाद. सबका सेशन होगा, हर सेशन इसी तरह होगा. मैं विवेक मुनि जी को आग्रह करूँगा, आप कृपा करके स्टेज पे आइए. मैं उसी के साथ में आचार्य फुनसुख जी को भी निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पे आइए और ये इनका सत्कार करिए. माँ मंडलेश्वर जी हैं, उनको भी आग्रह है, और भद्रकाली मंदिर से हमारे आचार्य जी हैं, इनको. ये अगर सेशन अच्छा लगा और मैं हिंदू हूं तो ताली बजनी चाहिए. पर सर आपने जो बोला उसका मैं ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट. सो इनको दीजिए सब. सो आइए. सो आई थिंक मैं माननीय प्रसाद लाड जी से निवेदन करूंगा कि अगर प्रसाद लाड जी, क्या आप यहाँ पर हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज स्टेज पे आ जाएं.
अच्छा, सभी से निवेदन है कि आप लोग उठ के जा रहे हो, अभी सेशन है तो अब एक सेशन है, उसके बाद जाना है, और आप पीछे बैठे हो, आप आगे आ जाओ प्लीज, जो भी है, क्योंकि लंच सबको भूख लगी है। बट एक सेशन है पंढरपुर का, इसके बाद में जो पंढरपुर देवस्थान और वारी संप्रदाय जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उचित नहीं रहेगा कि आप आगे शिफ्ट हो जाइए। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं निवेदन करूंगा अगर प्रसाद लाल जी को हम स्टेज पे बुला सकें। हमारा अगला सेशन पंढरपुर देवस्थान। आइए, कैन यू हैव अ ग्रुप फोटो? आइए आइए।